in thick and fast in the next few minutes, of course. But first, at the top of the hour, let's get you the headlines. Counting of votes begins in Gujarat and Himachal Pradesh. Rajya Sabha TV brings you continuous coverage of Verdict 2017. Results of 182 seats of Gujarat and 68 seats of Himachal Pradesh to be announced today. 37 centres set up in Gujarat, while counting begins at 42 centres in the hill state. And fate of stalwarts Vijay Rupani, Shakti Singh Gohil, Prem Kumar Dhumal and Veerbhadra Singh to be decided today, all confident of victory. Well, there you have it. Of course, the voting has begun. We just got you that information in Himachal Pradesh and Gujarat as well. We're going to start getting the figures to you very thick and fast as and when they keep appearing. We'll get you analysis as well as to what's in store for this particular election, what it means for the country, what political implications it's going to have for the assembly elections in 2018 and the big one in 2019. What does it mean for the voter? What does it mean for the country? And also, what does it mean for the economic policies, for reforms and everything else that's attached to it? Of course, still with us here in our studio is Rahul Dev, senior journalist. Rahul Dev, as far as voting percentage is concerned, we saw in between 2012 and 2017 in Gujarat especially, there has been a 3 percentage point dip in voter turnout. What do you attribute that to? Is it because Prime Minister Narendra Modi has not been there? He is no longer in Gujarat. He is at the centre now. So have people lost interest in the polling process in Gujarat? I mean, superficially speaking, you could say that, but I think there is a difference, and we need to make that distinction between the polling in the first phase and the second phase. The second phase polling picked up. The difference from the last time was larger in the drop was larger in the first phase. This tells me that any smugness that BJP might have had till the first phase was over, and they really went out and exerted themselves to bring every single voter they could to the polling booths in the second phase. Otherwise, it looks like a surge in voting percentage traditionally is understood as a desire for change. So if the overall percentage has come down, then the so-called desire for change that we keep hearing about wasn't as intense apparently as previously thought. Sure. So this goes in favor of the incumbent. Joining us now in our studio are Rajesh Mahapatra, editor-at-large, Hindustan Times, and Ashok Tandon, senior journalist. Welcome, gentlemen, to this big day today. Rajesh, first and foremost, your thoughts on the polls? On the voter turnout? Yeah, on the voter turnout, and of course on the general drama that is called the Indian politics. Well, this is, as I have said before, is the most important election before we go into the next national election in 2019. It definitely is more than a semi-final. What comes out today is going to set the tone for politics in 2018 and for politics in the run-up to the 2019 Lok Sabha elections. As far as the voter turnout is concerned, I have a different view. Conventional wisdom says that if voter turnout is high, it is a sign of incumbency, or if there has been strong anti-incumbency, the voter turnout ought to be higher. I don't think in the case of Gujarat that applies. There is a difference in what we have to keep in mind. So 5 more years for the BJP, you're saying, in Gujarat? No. I mean, the numbers will start rolling out. We should wait. We should hold our breath. I think the Gujarat election this time is a lot more complicated than what it is made out to be. I just want to
touch upon the point about voter turnout. If you look at what has happened in 2012, there was kind of an upsurge because people wanted to see Modi. Modi had already been projected as the prime ministerial candidate, so there was an upswing. I think the voter turnout otherwise Going has by that logic, 2014 also we saw that. It was we saw that 70% plus. Significantly higher. So now what you see, if you actually take the percentage out and look at the absolute numbers are more or less little more than the number of people that voted in 2012 have voted this time. So if there is a lower voter turnout, there could be many explanations for that. It could be possible that in areas where there is, because of the partidar agitation, and we have seen that happen in certain partidar concentrated constituencies where the voter turnout has been high. In certain areas, it has been low because some people who have been traditional voters of BJP may have been upset with BJP, but they have not been able to bring themselves to a point where they can come and vote for Congress. So they might have stayed away. The other thing which I noticed during my tour of Gujarat, and that was particularly closer to the polling day, there is a lot of people who have turned cynical. साहब ये EVM set हो गया है, हमारे वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Now this is a very dangerous thing for our democracy. A large number of people have started saying that there is whatever we do, the EVMs have been set, and now there are some analysts who are attributing that in some places, not in a very large number, but some people could have stayed away. Then there is also the question of the GST demonetization, which has actually hit the BJP's traditional support base very hard. So they may have been upset, they may not come to the rescue of Congress, or they may not switch sides, but their enthusiasm has taken a hit. I noticed that at many places, and these are the people who actually mobilize others to come and vote. So that also may So have it's a had combination of dampening. many factors is Several what you're factors. suggesting. Okay, yes. और हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़े हुए हैं. अशोक टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं. इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, और साथ ही आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. इस बीच नवीन कुमार जी, आपका रुख करना चाहें तो जिस तरह से यहाँ बैठे मेहमान भी जाहिर कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर जो शिकायतें थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या ये भी एक वजह है कि इस बार हमें जो वोटर टर्नआउट देखने को मिला वो कम रहा? और क्या आप भी मानते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा अब नहीं होंगे, क्या इसलिए भी कुछ उत्सुकता में कमी आई होगी गुजरात में? देखिए, गुजरात की जनता को इस बात का बहुत हर्ष और खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते आज देश के प्रधानमंत्री हैं. वो एक इस राज्य को जिस समय प्रतिनिधित्व करते आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नंबर एक. दूसरी बात ये कि ईवीएम में शिकायत, ईवीएम पहले कांग्रेस लेकर के आई थी, और जब कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में ईवीएम सही हो सकता है तो कुछ नहीं बोलेंगे. अगर जो है कर्नाटका में या दूसरे राज्यों में जहाँ ये जीत रहे हैं वहाँ ठीक हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जहाँ ईवीएम की शिकायत पहले से किसी न किसी पर हार का ठीकरा फोड़ना है, जब से एग्जिट पोल आए, और इनको इस बात का मालूम है कि गुजरात की जनता किसी भी प्रकार से कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है पिछले इतने समय में, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई है. विपक्ष की भूमिका नकारात्मक निभाने के कारण कांग्रेस आज हाशिए पे है. यही कारण है. ठीक है, ये नतीजे कुछ देर बाद आने शुरू होंगे, और हमें उम्मीद है कि एग्जिट पोल बताता है मैक्सिमम 130 135, पर हम 150 के आसपास जाएंगे, ऐसी संभावना है. बिल्कुल. इस बीच अशोक टंडन, अगर आपका रुख करना चाहें, ईवीएम को लेकर जिस तरह से शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इसका एक सकारात्मक पक्ष भी हम मान सकते हैं कि वीवीपीएट की शुरुआत हुई और ये हमारे सामने आई? पिछले 3 साल से कुछ फंड का दिक्कत थी, वो सामने आया, और अब गुजरात और हिमाचल में हर क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर वीवीपीएट ही सामने आई. क्या इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है इन शिकायतों का? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है, जैसे आपने कहा कि ये विपक्ष की एक मांग थी जो मान ली गई है, और इस बार तो ये भी प्रावधान है कि 25% स्थानों पर अगर शिकायत आएगी तो वो उनकी पर्ची की काउंटिंग भी हो सकती है. मुझे लगता नहीं है कि इस बार ईवीएम मशीन को दोषी ठहराया जाएगा अगर इस प्रकार से कोई परिणाम आते हैं तो. और शायद कांग्रेस कैंप में तो इस बार मणिशंकर अय्यर को ज़्यादा ब्लेम किया जा सकता है कि जो एक अच्छा खासा राहुल गांधी के नेतृत्व में कैंपेन चल रहा था और उसको उन्होंने समय समय पर जिस तरह से सबोटाज किया. लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी से
मैं देख रहा था कि हार्दिक पटेल ने अभी से ईवीएम के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जनता में ये भी संदेश जाता है कि आप हार मान चुके हैं। देखिए, चुनाव परिणाम से पहले ईवीएम की बात करना और उस स्थिति में करना कि जब अब आपके सामने उसका प्रूफ भी है, तो मुझे लगता है जैसा ठीक कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं तो ऐसे में फिर से ये मांग उठेगी कि बैलेट बॉक्स पर चलिए, जो पहले था, जिसके बारे में उस समय ये मांग उठती थी कि उसको तो जो है वो बैलेट बॉक्स ही उठा कर ले जाते हैं। कैप्चरिंग का एक लंबे समय तक इस प्रकार का आरोप चलता रहा, और जिसके बाद ये ईवीएम मशीन आई, और ईवीएम मशीन में भी अब एक रसीद और पर्ची का प्रोविज़न भी है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कि अगर एक ही पार्टी जीतती है तो ईवीएम को आप ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट अलग अलग आते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है, पंजाब में कांग्रेस जीतती है, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, तब ईवीएम की बात कहीं नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ईवीएम की बात राजनीतिक दलों को चुनाव के बाद अलग से बैठकर इस पर चर्चा करके सहमति बनानी चाहिए, ना कि चुनाव के समय पर ईवीएम का जिक्र होता है। Election Commission tried an exercise like that as well earlier in the year, but there were no political parties who came forth and actually participated in that particular event. Let's move on now and bring in Dharmik Malviya, convener PAS, who joins us on Skype from Ahmedabad in Gujarat. You know, Dharmik, as Ashok Tandon has just suggested, you know, you've already gone into the election with a caveat saying that the election could possibly be rigged. So you conceded defeat even before you started the race. Well, I don't know if you can hear us, but anyways, let's try and fix the technical glitch in the meantime. Rajesh Mahapatra, do you want to respond to that? You know, the caveat that the Congress and the opposition leaders have already have, you know, they don't seem to be, you know, they're trying to cushion themselves before the actual race for an eventual outcome. You see, I think one of the reasons could be that people who have gone around in Gujarat, when the exit polls came out, a lot of people would still say that, well, BJP might scrape through, or the contest would be very close. It's only when the numbers started rolling out 120, 125, then people started questioning that, you know, there is so much of noise of anti-incumbency. How could it be possible that the BJP would get more than 115? That's the question that came into people's mind. Now, it is quite possible that, you know, the Patidar agitation has been a very vocal agitation. You know, that noise you might be hearing in urban centers. It is quite possible that there might have been an anti-Patidar consolidation that might be taking place, which is what some of our BJP leaders have suggested. So we do not know that, but what we know that we heard a lot of voice. The noise was too much, and yet how could you get more than 120? And that's when people started coming up with this theory. You know, the only way it could be possible then probably EVMs are being tampered. The point I am trying to make is I have no judgment, I'm not being judgmental, or I have no expertise to say whether EVMs could be tampered or not. What I'm trying to say, if this doubt is being seeded in people's mind, it is not good for democracy. As Tandon said, that Mr. Tandon wants to intervene to something that you're saying. Let's hear him out first and then you can respond. Yes, no, Mr. I was Tandon. wondering what Rajesh is saying. See, he is talking of the trend or the feeling in Gujarat. And when the exit polls come, people start doubting EVM. No, are we doubting? I can understand if we doubt the exit polls. But exit polls, as are claimed, are on the basis of when people come out and tell the media. I'm Now, completely how in does, agreement no, with no, that. Rajesh, I how absolutely does agree. EVM come into the picture on the basis of the exit polls? That is why I'm saying it is an unfortunate development. Yes. It is unfortunate. It is unfortunate, and we must. What is new? Let- Because yeah. in every election, there are some people who cast doubts on EVMs and who cast doubts on the whole election process. It's nothing new. And it all, the strange thing is that people who think they are going to lose are the most vocal critics of the EVM machines or the system. So, really, are the people talking about it, or the leaders who are fearing losses talking about it? You know, I think we should bring in Rajiv Tyagi into the picture now, Congress spokesperson who can probably clarify some things for us. Rajiv Tyagi, you know, are you trying to
cushion Rahul Gandhi's fall, and that's why you're coming up with these with these caveats, trying to say that this is probably why the Congress did not do well in Gujarat, and probably take the blame away from Rahul Gandhi, who has now been elevated as party president. I do not think that Congress will not do well in Gujarat, and my observation is that Congress will do better, and Gujaratis has given their lot of love to our leader Rahul Gandhi ji, and we all congressmen are pleased due to that. Second thing, I would like to tell you that the Election Commission has been very biased regarding Gujarat elections. We have seen that they have not announced the dates. When they were announcing the dates of Himachal, they have taken time in that because Honorable Prime Minister was making a scheme to inaugurate some schemes for Gujarat. So we have seen in election campaign also that Election Commission was issuing us some warning and some notices to Rahul Gandhi ji also, and stopped the telecast of that interview. And the Election Commission was not able to stop Prime Minister to campaign on that election day. So these are the things which are very, I think these are the bad precedents being set by Election Commission and Prime Minister also. So we have to discuss about all these things, and if democracy is strengthened, then common man is getting chance to be strengthened. So my point is that if we want to save democracy, we have to save the constitutional authorities. बिल्कुल हम राजीव त्यागी आपके पास दोबारा आएंगे। इस बीच 8 बजे से मतों की गिनती का काम शुरू हो गया और आपको बता दें कि ट्रेंड भी सामने आने शुरू हो गए हैं। गुजरात और हिमाचल में मतों की गिनती जारी है और गुजरात से जो रुझान आया है वो पहला रुझान आया है। डीसा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि 2012 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही थी और फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें डीसा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी ये पहला रुझान 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई है और डीसा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ पाटीदार नेता धार्मिक मालवीय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। धार्मिक, आपसे उम्मीदें जानना चाहेंगे आज के किस तरह की आप लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप एग्जिट पोल के बाद लगाए गए, मतों की गिनती से पहले लगाए गए, उससे कुछ शंकाएं आप लोग के प्रदर्शन को लेकर भी जाहिर हो रही हैं। जहां तक उम्मीद की बात है तो लोगों के अंदर जो रोष की भावना है, पाटीदार अनामत आंदोलन को लेके सरकार से जो नाराजगी है, उसके अलावा भी भाजपा की ओर जो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, दलित आंदोलन की बात हो, ठाकुर समाज के आंदोलन की बात हो, तो इन सब जो गुजरात सरकार में भाजपा के सामने जो भी मूवमेंट खड़ी हुई है, तो उसको लेके जो उसके साथ लोगों का रोष है, हाँ, वो देखते हुए गुजरात में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। ये देखना होगा कि जो गुस्सा सड़कों पर दिखा, जो साथ आप लोगों के नेताओं के साथ और खासतौर से हार्दिक पटेल के साथ हमने सड़कों पर देखा, सभाओं में देखा, वो आज मतों में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा। पहला रुझान हमें गुजरात से मिल रहा है, डीसा सीट पर बीजेपी आगे है। पहला रुझान सामने आ गया है राहुल देव जी। बिल्कुल, और मैं देख रहा था कुछ दूसरी साइट्स में तो लगभग 37 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिनमें 7 सीटें कांग्रेस की तरफ हैं अभी जाती दिख रही हैं और 30 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं। तो ये जो अपेक्षित परिणाम रहे हैं, ये रुझान उनके अनुकूल ही हैं। हालांकि एक सिर्फ इस पर अभी हम कोई अंदाज नहीं लगाएंगे, लेकिन दिशा ईवीएम की कृपा से अब बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि दिशा यही जारी रहती है या बदलती है आगे। Rajesh Mahapatra, if you look at our screen there, you can see the trends coming in. BJP 26, I think, in Gujarat, and 18 is the INC. So these are the figures from Gujarat. So clearly, it looks like the BJP is in the lead at the moment, and it looks like this lead could hold as well. Yeah, I think it's kind of sustaining the trend that was seen in the last assembly election so far. What I can see from other sources is that
the BJP's 25 tally is the leads are coming mostly from the seats that they had won. There has probably been a couple gain in a couple of seats, and Congress, as of now, seems like there has been a loss of about 1 or 2 seats in terms of leads. Yeah, they are holding onto the last assembly trends, but these are early leads. Of course, they might change. We should probably wait for another half an hour or 45 minutes. Mr. Tandon, if you look at Himachal, it looks like a neck-and-neck battle at the moment. Of course, early days as of now, and Himachal made the numbers could take time coming in from Himachal as well, because it has to come in from some of the remote areas, some of the hilly areas too. But as of now, it looks like it's neck and neck. Yeah, we'll have to wait and see. But in respect of Gujarat, I wanted to make a comment. See, we'll have to look at the region-wise. North Gujarat is very crucial, because even BJP was conceding that there is a close contest in North Gujarat, and some of the pollsters were giving 50-50 seats in North Gujarat. Out of 32, 16 each to Congress and BJP. So we will have to see how much gain Congress could make in North Gujarat. If you look at the regional figures that are coming in, let me just put that out as well, so that we can analyze this a little better. Central Gujarat 6 for the BJP, 1 for the Congress. North Gujarat 13 for the BJP, 5 for the Congress. Saurashtra 10 for the BJP, 2 for the Congress, and South Gujarat 4 for the BJP and 1 for the Congress. So clearly the BJP seems to be doing well all across. There were apprehensions that the BJP will not do too well in North Gujarat, but even in North Gujarat, BJP seems to be doing very well. Both Saurashtra and North Gujarat, if this trend continues, and it speaks a lot about I would say, the accuracy of the exit polls, what they were coming out with. The reasons we'll have to analyze later, but this current trend defies the earlier conventional wisdom of BJP being traditionally weak in North Gujarat and Saurashtra. And as Mr. Tandon was saying, North Gujarat is the place to watch, because this is where the three most the youth leaders who have joined to fight BJP, they come from. So if this is the trend in North Gujarat, then you can it's a sweep. बिल्कुल। और अब रुझान आना शुरू हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। हिमाचल और गुजरात में काउंटिंग शुरू हो गई है और गुजरात में 43 सीटों पर रुझान भी मिल गए हैं। इनमें बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें 43 सीटों के रुझान है, जिन पर 25 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। अगर बात हम हिमाचल की करें तो हिमाचल में 5 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और आइए इसी ट्रेंड पर अब हम अशोक टंडन का रुख करते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, अशोक टंडन, इन रुझानों को लेकर फिलहाल आप कैसा विश्लेषण करेंगे? इसमें हिमाचल के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी विश्लेषक हैं, पोलस्टर्स हैं, एग्जिट पोल, हिमाचल पर बिल्कुल ही कोई फोकस किसी भी मीडिया का रहा नहीं है और एक ही तरफा हिमाचल के चुनाव परिणामों की तरफ इंगित किया गया एग्जिट पोल्स में भी, और बीजेपी को बहुत भारी बढ़त दिखाई गई, जबकि अभी शुरू के जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, उसमें अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हिमाचल के बारे में इतनी कम चर्चा इस सारे चुनाव के दिनों में हुई। अशोक टंडन, आपको एक पल के लिए रोकना चाहूंगी। फिर से जो ट्रेंड हमें दिख रहे हैं, अब ये हिमाचल की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी 4 और कांग्रेस 2, ये सामने आ गया है, जबकि बीजेपी 40 सीटों पर गुजरात में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस फिलहाल 27 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल की बात आप कर रहे थे। हाँ, तो हिमाचल की चर्चा ही नहीं हुई। और शायद आज भी गुजरात के संदर्भ में हिमाचल की चर्चा कम होगी, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस एक बहुत समय तक, लंबे समय तक उसका प्रभुत्व रहा है, और बीच में ये भी था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होने लगी थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने हिमाचल को रिटेन किया था, और इस बार केवल ये मान लिया गया कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते वीरभद्र के खिलाफ माहौल है तो बीजेपी स्वीप करेगी। लेकिन अभी जो रुझान है उसके हिसाब से चाहे 4 और 2 है, लेकिन मुझे लगता है कि
हिमाचल के पर चर्चा भी होनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से इस सारे चुनाव अभियान में नहीं हो रही, क्योंकि गुजरात को इतना ज़्यादा फोकस कर दिया गया और अब गुजरात के जो परिणाम हैं वो लगभग उसी तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए जैसे कि एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है। तो हिमाचल की राजनीति पर भी मुझे लगता है कि चर्चा की आवश्यकता होगी। जो हिमाचल से ट्रेंड सामने आ रहे हैं 4 और 2 का आंकड़ा, राहुल देव आप हिमाचल पे किस तरह से नज़र डालेंगे इस समय? देखिए, हिमाचल के बारे में जैसे अशोक जी ने कहा कि लगभग सभी एग्जिट पोल भी एकमत थे और हिमाचल का इतिहास भी ये बताता है कि वहाँ पर कभी सरकार दोहराई नहीं गई। तो इस बार उस पूरे हिमाचल के सारे चुनाव के इतिहास को देख लें तो बारी बीजेपी की बनती है, पहली बात ये है। और उसमें अगर आप नरेंद्र मोदी का जो एक हम राष्ट्रव्यापी आकर्षण और उनका जो प्रभाव देखते हैं चुनावों पर, जो अलग अलग प्रदेशों में साबित हो चुका है, ऐसे प्रदेशों में भी जहां पर जो बीजेपी के पारंपरिक गढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर मानना ये चाहिए कि एक ऐतिहासिक बारी बीजेपी की और उस पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव, उन्होंने वहाँ पर जितना, वहाँ भी उन्होंने खूब मेहनत की और काफ़ी सभाएं की। तो परिणाम बहुत अनुमान बहुत स्पष्ट हैं परिणामों के बारे में। तो लेकिन ये जो अभी आधा आधा चल रहा है ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पे दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, सब जगह से परिणाम आने में उतनी तेज़ी नहीं रहती जैसे हम गुजरात में पाएंगे, जहाँ पर चुनाव क्षेत्र में पास हैं और दूरियां उतनी ज़्यादा नहीं हैं। We are joined by Mahendra Dharmani, spokesperson of the BJP in Himachal Pradesh. And since we are talking about Himachal Pradesh, let's quickly go across to him and see what he thinks of the trends right now. Mahendra Dharmani, you know, the BJP seems to be in the early lead as far as the trends are concerned. 4 in favor of the BJP, 2 in favor of the Congress. You know, we saw that very few of your heavyweights, in fact, went to Himachal Pradesh and campaigned as well. Did you believe from the beginning that it was a foregone conclusion? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक हवा प्रचार प्रसार के दौरान हमको दिखी है, उसी के अनुरूप चुनाव परिणाम आने वाले हैं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से और विभिन्न जो रिपोर्ट्स हैं उसके माध्यम से ऐसा ज्ञात होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता केंद्र की मोदी सरकार के विकास के साथ चलना चाहती है और उसी के परिणाम हम आशा करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। बिल्कुल। और आप लोगों ने कहीं अभी ना तक कहीं जो चुनाव परिणाम जी आ भी रहे होंगे आपके पास, वो अभी तुरंत जो शुरुआती रुझान हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां मतगणना हो रही है वो मतगणना 7:30 बजे प्रारंभ हुई होगी, तो उसके आधार पर अभी तक तो बैलेट पेपर के जो मत पड़े होंगे उसके आधार पर कुछ रुझान हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी का 50+ का जो नारा था उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। आइए अब नवीन कुमार के पास चलते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से इस बीच आपको हम बता दें जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर भी लगातार देख पा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो 54 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 29 सीटों का है। 29 सीटों पर इस समय गुजरात में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि फिलहाल रुझानों में अन्य के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। हिमाचल के रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में फिलहाल 3 सीटें हैं। नवीन कुमार जी, हिमाचल को लेकर भी आप लोगों ने तैयारियां काफी पहले ही जश्न मनाने की शुरू कर दी थी, लेकिन जो ट्रेंड आ रहे हैं हम देख रहे हैं लगातार जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा है वो 2-1, 4-2 और अब 6-3। देखिए, जो देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास नहीं, वो 100 विश्वास करोड़ है, देश लेकिन के ट्रेंड की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री हैं देश के। हाँ नवीन जी, ट्रेंड और यही कारण है कि चाहे गुजरात के मामले में आप देख लीजिए या फिर हिमाचल के मामले में देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह की जीत की आशा आप लोग कर रहे हैं, क्या वो जीत मिलती दिख रही है? शुरुआती ट्रेंड से क्या लग रहा है? जो रुझान कांटे का दिख रहा है, आधी आधी सीटें दिख रही हैं, जिस तरह की मेजर विक्ट्री की बात आप लोग कह रहे हैं हिमाचल में, क्या वो मिलती दिख रही है इस ट्रेंड के मुताबिक? हिमाचल में और गुजरात में दोनों में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने वाले हैं। और जिस प्रकार से हमें, क्योंकि बूथ लेवल पर काम करने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
किसी बाकी पार्टियां चुनावों के समय में आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो 24/7 वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। उसके कार्यकर्ता हमें बूथ लेवल पर काम करते हैं, इसलिए जानकारी है कि हम बूथ लेवल से कैसे जीतेंगे। दूसरी पार्टियां चुनावों में आती हैं जिसका सीधा सरोकार जनता के बीच में नहीं है, इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। और अमित शाह जी ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, जो छोटे से छोटे अंडमान या लक्षद्वीप के भी बूथ पालक से भी जाकर के मिले हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और वो जानते भी हैं, और उनका जो केंद्र की योजना है या फिर जो राज्य के विकास की योजना है, वो लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम पूर्ण विश्वास में भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी और गुजरात में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजीव त्यागी का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका रुख भी एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उन्हीं की तरफ मुड़ता दिख रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि जो ट्रेंड मिल रहे हैं वो गुजरात में 54 सीटों पर बीजेपी आगे है, 38 पर आपकी पार्टी आगे चल रही है। वहीं हिमाचल में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 पर फिलहाल आप आगे चल रहे हैं। देखिए, जो ट्रेंड है वो शुरुआती दौर में अभी शायद फर्स्ट फेज की काउंटिंग हुई होगी और पहला राउंड अभी चल रहा होगा। काफ़ी राउंड होते हैं, तो इसलिए अभी इस पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा गुजरात चुनाव में हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये हम देखने को मिली पार्टी के बारे में कि हमने विकास के मुद्दे पर पूरा चुनाव सेंट्रिक किया, मुद्दा आधारित चुनाव प्रचार किया और मुद्दों को उठाने का काम किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उधर से जवाब पाया। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि वो 24 घंटे के अध्यक्ष हैं और 24 घंटे के सभी अध्यक्ष होते हैं। हरियाणा, आपके बिहार में भी चुनाव हमने देखा कि क्या रिजल्ट आया, पंजाब में देखा, गोवा में देखा, मणिपुर में देखा, दिल्ली में देखा। तो ये भी जरा देखना चाहिए कि वहाँ भी बूथ कमेटी आपकी थी। लेकिन ये जो रुझान है, निश्चित रूप से मुद्दा, भले ही शुरुआती रुझान है राजीव त्यागी जी, लेकिन देखा जाए अगर सारी सीटों को मिलाकर आधी से ज्यादा सीटों के रुझान गुजरात में आ गए हैं। फिलहाल आधी से ज्यादा, करीब 93 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 63 पर मैंने बताया ना कि बैलेट देखिए पोस्टल बैलेट से लेकर के अभी देखिए, मैं जहां तक समझता हूं पहले राउंड की काउंटिंग के रुझान जो है ना, वो आपको क्या नाम उसका आए होंगे जहां तक मैं समझता हूं। और मैं अभी भी मुतमईन हूं इस बात के लिए लेकर के गुजरात में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में अगर एम्प्लॉयज़ जो सरकारी कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के, अगर उनको 4-9-14 एक फार्मूला था जिसको वो तुरंत इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात की थी कि हम सत्ता में आने के बाद एकदम इसको 4-9-14 को लागू करेंगे। अगर वो चीज़ें एम्प्लॉयज़ ने समझी होंगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो समझी होंगी, तो हिमाचल में भी कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करेगी। You know, Rajesh Mahapatra, looking at these trends at the moment, looks like they're going to hold now because it's been about 34 minutes. 105 seats trending at the moment. BJP at 63, Congress at 41. So it looks like the exit pollsters have gotten it right yet again. Yeah, but if you sort of extrapolate from the way the numbers are coming in, out of the 63 leads that BJP have, these are mostly the seats where they had won in 2012, and for the seats that Congress is leading in, there are probably still a gain of a couple over there. So if you kind of extend this trend, you are looking at probably something like 110 and 70. This is as of now. Yeah. So it looks like the exit pollsters have gotten it right then at the end of the day, because that's what most of the exit polls were saying. The ones who were kind of a little conservative. There were some who went up to 135 and 120. You know, what does this mean, Rahul Dev, as far as the BJP is concerned? Does it mean that, the Modi magic has worked? Does it mean the Gujarat development model also has worked? And where does it take the BJP from here? Well, my own estimate, as I have said publicly on television, was I gave 110 to 115 to BJP, and current trends seem to confirm that. It will mean that Modi magic holds. I was never one of those who thought that anything short of 130, 135, even going further ahead, 140 or 150, as Amit Shah said, was the test of Modi's magic. I think after 22 years of incumbency, if in the 6th term going,
BJP retains 110, and between 110 and 115, it's a great achievement. It's a remarkable achievement, and it means that Modi magic is working, because there were new extraneous and anti-BJP factors active this time. But it's a step down from 2014, because the 2014 trends held in 2017. Well, the that BJP would difference- have got 160 That difference seats. is always there in all elections. You can never compare Lok Sabha trends and expect them to be completely 100% converted to assembly trends. It's never happened. Doesn't happen. It just gives you a sense of direction, not more. So to expect the same Lok Sabha trends to continue in the state elections is impractical. ठीक है, एक बार फिर से हम बता दें जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं। 63 सीटों पर बीजेपी आगे है इस समय गुजरात में, वहीं कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में भी इस समय एक सीट जाती दिख रही। रुझान है, शुरुआती रुझान 8 बजे से मतों की गिनती का काम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 सीटें बीजेपी जिन पर लीड कर रही है, ऐसी 6 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, जबकि 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे है। और यहाँ भी अन्य के लिए जो रुझान आए हैं, 2 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश में। महेंद्र धर्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं हिमाचल प्रदेश में। धर्मानी साहब, क्या मानेंगे आप, जो ट्रेंड दिख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की हार ज़्यादा होगी या फिर बीजेपी की जीत होगी, अगर इसी राह पर आगे नतीजे भी हमें दिखाई देते हैं? बड़ा फैक्टर क्या है हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में शुरुआती जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसमें दोनों फैक्टर हैं कि एक तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो विकास के काम हैं, उसके प्रति हिमाचल की जनता ने अपना विश्वास जताया है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में कांग्रेस की सरकार की जो नाकामी रही है, जिस प्रकार से विकास रुका, जिस प्रकार से इस प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, ये दोनों मुद्दे जो हैं इस चुनाव में लोगों के बीच में थे और लोगों ने उसके ऊपर अपना मत दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन और कांग्रेस सरकार की विफलता का ये चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। जी, और अभी तक जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, क्योंकि अभी तक तो शुरुआती रुझान हैं जी, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, हमारा जो 50+ का जो टारगेट था उससे आगे बढ़ेंगे। और जैसा सब चैनल ने जो एग्जिट पोल में दिखाया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 50+ के नारे को लेकर के जो चली थी उसको हम पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से विकास की ओर हम जाएंगे और हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अशोक टंडन के पास चलते हैं और इस बीच एक बार फिर से हम आपको बता दें, फिलहाल 65 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है गुजरात में और 44 सीटें ऐसी हैं गुजरात में जिन पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। अन्य 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। हिमाचल का भी अपडेट आपको दे दें, 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस आगे है और 2 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में अन्य आगे चल रहे हैं। 68 में से 11 सीटों के रुझान फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हमारे सामने आ गए हैं। अशोक टंडन, आप क्या कहेंगे? हिमाचल की ही बात हो रही थी, ज़्यादा किस फैक्टर ने काम किया है यहाँ? कांग्रेस की हार ज़्यादा बड़ी दिख रही है या बीजेपी अपनी वजह से जीत रही है? और साथ ही जो भी मैंडेट आज आएगा सामने, मोदी मैजिक, मोदी के जादू के अलावा क्या वो कहीं ना कहीं एक मैंडेट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी पर भी होगा? देखिए, हिमाचल एक छोटा प्रदेश है और जितने छोटे प्रदेश होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है चुनाव में कि केंद्र में किसकी सरकार है। अगर आपको ध्यान हो तो हिमाचल के पिछले चुनाव में 2012 में लगभग सभी पोलस्टर ने कह दिया था कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन क्योंकि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो इस एक फैक्टर के चलते पहली बार बहुत समय के बाद हिमाचल में एक ही सरकार दोबारा आई थी कांग्रेस की, नहीं तो वहाँ एक बार होता रहा। तो इस बार ये बड़ा स्पष्ट था कि केंद्र में क्योंकि इस समय भाजपा की सरकार है तो छोटे राज्यों के जो मतदाता होते हैं। आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगी क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो गई है तो लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। पोरबंदर से अर्जुन मोडवाडिया इस समय पीछे चल रहे हैं।
ये एक बड़ा नाम है अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के, जो कि इस समय पोरबंदर से पीछे चल रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के 44 ऐसे उम्मीदवार हैं जो रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम अर्जुन मोढवाडिया जो कि फिलहाल अभी तक के रुझानों के मुताबिक पोरबंदर से पीछे चल रहे हैं। अशोक टंडन जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि हिमाचल में ये एक फैक्टर बहुत काम करता है कि केंद्र में किसकी सरकार है, क्योंकि छोटे राज्यों के लोगों के मन में ये रहता है कि विकास तभी हो सकता है प्रदेश में अगर केंद्र से सहायता मिले। तो वो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आता है तो अन्य फैक्टर्स के अलावा एक ये फैक्टर भी काम करेगा, जो लगभग 2012 में इसी कारण से शायद भाजपा पिछली बार बहुत नज़दीक आकर भी जीत के हार में परिवर्तित हो गई थी। राहुल देव, आप क्या कहेंगे? अगर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की बात करें, हमने देखा जब ये लागू होने वाला था, गुस्सा हमें गुजरात में काफ़ी हद तक इसके खिलाफ भी दिखाई दिया, व्यापारियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन क्या धीरे धीरे जिस तरह से ये लागू हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं इसके पक्ष और कमियां दोनों चीज़ें सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं वोटिंग डे तक आते आते लोगों ने इसे समझा है, कैसे इन दोनों पर भी मैंडेट माना जाएगा इन नतीजों को? देखिए, नोटबंदी के असर से तो लगभग पूरे देश में लोग जल्दी बाहर निकल आए थे। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उसका असर कम हुआ था, क्योंकि वहाँ पर नकद की अर्थव्यवस्था पहले से ही कम है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी से नाराज़गी निश्चित रूप से थी गुजरात के व्यापारियों में। उन्होंने सूरत में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन करके उस असंतोष को, नाराज़गी को व्यक्त भी किया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने 150 चीज़ों पर जीएसटी का रेट कम कर दिया। उन्होंने कई राहतें ऐसे दी हैं जो निश्चित रूप से गुजरात चुनावों को ध्यान में रख कर दी गई थी, जिसके कारण लोगों की नाराज़गी और उनको जो कष्ट हुआ था व्यापारियों को, वो कम हुआ है। तीसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि गुजरात के लोग बहुत समझदार और बहुत होशियार लोग, हमें कहूँगा, और व्यापार उनकी मूल वृत्ति है। तो सूरत का जो प्रदर्शन था या जो व्यापारियों का गुस्सा हमें प्रकट होता दिख रहा था, वो केंद्र सरकार पर दबाव डालने की एक कोशिश ज़्यादा थी। ऐसी नाराज़गी जो वो उनको वोट खिलाफ देने के लिए प्रेरित करती, वो नहीं थी। अंततः गुजरात के लोग अपने गौरव को, यानी नरेंद्र मोदी को, नहीं छोड़े। बिल्कुल। और एक और अपडेट आ गया है, राजकोट पश्चिम से विजय रूपानी, बीजेपी के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री गुजरात के, वो इस समय आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि अर्जुन मोढवाडिया, एक बड़ा नाम कांग्रेस का पोरबंदर से, वो फिलहाल पीछे चल रहा है। तो ये दो बड़े चेहरे जो फिलहाल रुझान जिनकी सीटों पर हमारे सामने आ रहे हैं, राजकोट पश्चिम विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री, बीजेपी का बड़ा चेहरा, वो इस समय रुझानों में आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से इस समय पीछे चल रहे हैं। राजेश महापात्रा, इन दोनों ही रुझानों पर आप क्या कहेंगे? अर्जुन मोढवाडिया के पीछे चलने कोई सरप्राइजिंग नहीं है। वहाँ पे ये बीजेपी का सीट है और बीजेपी का गढ़ है, और अर्जुन मोढवाडिया के ये मर डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बाबू बुखारिया शायद वहाँ पे उम्मीदवार है, वो उम्मीद थी कि वो जीतेंगे दोबारा। तो ये ना कि राजकोट वेस्ट में जहाँ विजय रूपानी जी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के, वहाँ पे 5% वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीट है जहाँ पर कि पिछले बार से बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ, 5%, एंड की पार्टी की तरफ से अच्छी मोबिलाइजेशन हुई है। तो दोनों कोई आश्चर्यजनक ये एक्सपेक्टेड थे जो दो you know, talking about these trends that are coming in right now, let me just clarify to the viewers that Himachal, we are still with the postal ballot trends. The real trends have still not yet started coming in, and as far as Gujarat is concerned, 50% of the trends in Gujarat are still from postal ballots. So all these figures that we see on our screens can change dramatically over the next half an hour or 45 minutes. But if they hold, Rajesh Mahapatra, where does it leave Rahul Gandhi, and where does it leave the Congress and this rainbow alliance that they have created in Gujarat? As you're saying, if these are postal ballots, then probably you'll see significant changes as we go along. Even if these were to hold, I think Congress has ended up doing a reasonably good job. And I think both, even BJP has ended up probably containing the damage pretty well. You know, what one had seen a week before going into the elections and the way they ramped up their effort, it would be considered I'm just going to cut you short there because Subramanian Swamy of the BJP is speaking to the media. Let's listen into what he has to say. Congratulated me for suggesting that. That time the Congress was opposing.
They were saying, no, EV machines are okay. Now they are gone to the exact opposite. So there's no credibility in the Congress charge. They must point out. Last time I pointed out that whenever there's a dispute in an election, the same machine is run over again. So how can it be a fair recount? So you must have an alternative recount, and that's how the VVPAT suggestion was accepted. And it is there in the Supreme Court judgment journals, that judgment. People should read that judgment. Now it's almost difficult, very impossible, nearly impossible to do it. एक छोटा सा सर हिंदी में गुजरात हिमाचल के नरली ट्रेंड में बीजेपी आगे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि हम जीतेंगे, मेजॉरिटी बनाएंगे, मेजॉरिटी 105 हो जाएगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, 120 भी अधिकतम मानूंगा, 150 होगा, ये तो फिर जय जयकार होगी हमारी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह की। लेकिन सर क्या वहाँ पे कोई ऐसी तिगड़ी चली नहीं, क्योंकि जिग्नेश हार्दिक पटेल कांग्रेस नहीं, देखिए जब हिंदुओं की बात उभारी जाती है, ये कांग्रेस ये समझती नहीं है। 2014 में भी हमने हिंदुत्व चला करके हिंदुओं को जात से ऊपर उठने के गए। यहाँ आखिर में जब आपने राम मंदिर का ऐसे ही बेइज्जती कर दी उस इश्यू को कपिल सिब्बल ने, उसके बाद तो मुझे पता था कि हम जीतना निश्चित है और 105 से भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन सर राहुल गांधी ने वहाँ ताबड़तोड़ रैलियां करी, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि विकास गया है, पता नहीं किस तरीके। देखिए इलेक्शन में कोई ज्यादा दिमाग बदलते नहीं है। हाँ, कोई घोर गलती करे जैसे कपिल सिब्बल ने की या मनीष शंकर अय्यर ने की, और उसके नॉर्मली इलेक्शन एक फाइनल जैसे सप्तापदी होती है शादी में, वैसे एक फाइनल स्टेप है, परंतु उसके लिए तैयारी जो होती है उसमें कांग्रेस जीरो है, उनके पास कार्यकर्ता कोई नहीं है। क्या गड़बड़ी की है सर आप लोगों ने ईवीएम में, ऐसा कांग्रेस और हार्दिक जब मैं सुप्रीम कोर्ट Well, there you have it, of course, Subramania Swamy there speaking to the media as far as the trends that are coming in are concerned. If you talk about the trends right now, see, if you look at Gujarat, 143 seats trending at the moment, 90 in favor of the BJP, 52 in favor of the Congress, and in Himachal Pradesh, of course, 28 seats coming in right now, 16 in favor of the BJP, 10 in favor of the Congress, and 2 others, of course. Syed Zafar of the BJP joins us from the BJP headquarters. Now, Syed Zafar, things going according to plan as far as the BJP is concerned? Well, definitely the initial indications are definitely in our favor, but what is more important for all of us to realize that it was a very difficult election for Bharatiya Janata Party, given the fact that the Congress party had adopted the divisive policy. They were fighting election based on caste, creed and religion. They were following the policy of appeasement, and this was a difficult, a very tough election for us. Having said that, but today I must tell you, the people of Gujarat, people of Himachal Pradesh repose faith and confidence in Bharatiya Janata Party, and this victory. But why did the BJP get its hands dirty? This victory will be dedicated to people of Gujarat. If you are accusing the Congress of being divisive, if you are accusing the Congress of playing dirty, then why did the BJP get its hands dirty? You should have stuck to your development agenda and taken it to the people. Well, that's true. We stuck to our agenda of development, and it is for the people of Gujarat who had to repose confidence in us and give a stamp of approval to Bharatiya Janata Party. And today's initial indication does suggest that Bharatiya Janata Party has approval, stamp of approval from the people of Gujarat, and they have reposed confidence. And this victory will be of confidence and development, whatever has been done in the last 22 years in Gujarat by the Bharatiya Janata Party. Okay, stay with us, Syed Zafar. In the meantime, of course, you can see the trends coming in on the bottom of your screens. Of course, 143 in Gujarat, 28 in Himachal Pradesh. Those figures are going to change continuously, and you can keep them, keep being updated, of course, by looking at the bottom of our screens. Rahul Dev, you had some interesting information to share with us as to what's happening with some of the big wigs in Gujarat. I gather that Nitin Patel, the Deputy Chief Minister, is trailing, and the Pesh Thakur and Jignesh Mevani are both leading. So these are interesting trends. Jignesh, I would also commend that so far, going by the trends that we have on our channel so far, the Congress seems to be maintaining a very healthy, respectable ratio of
ratio, which is much better than last time. So does that mean, Ashok Tandon, that the Congress, of course, upset with defeat at the moment, but will be happy that they've been able to at least muster up these many numbers? See, my personal view is that if the Gujarat election was fought in a normal way, perhaps things would have been better for the Congress. Because why I'm saying is, if you compare this election with the previous election, in 2012 it was Narendra Modi himself who was seeking a third term, and BJP could win only 115 seats, if I am correct. Now this time, because the pitch has been raised so much, stakes have been raised so much, that it has become basically an election between Narendra Modi and Rahul Gandhi. I think this ultimately will cost Congress more, because when Narendra Modi has invoked his own prestige as Prime Minister of India from Gujarat, things have changed in favor of BJP. If they had remained like a normal election, even look at it, Narendra Modi seeking third term in Gujarat was a normal election in which he could win only 115. Now if BJP goes beyond 115 now, which appears to be the case, then I don't think Congress can claim it in any sense. It should have been a normal election. Why raise the pitch? And that, according to me, was a mistake, and they literally forced Narendra Modi to make it a prestige issue for himself. And therefore, I think if Congress can retain only what they had in the previous election, I don't think there is any gain in it. राजेश महापात्रा, आप क्या कहेंगे? जिस तरह के अब हम तमाम सीटों पर देख रहे हैं, जिस तरह की लीड आगे चल रही है बीजेपी की, और जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, क्या हम ये माने, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों का लगा हुआ है, क्या हम माने कि नरेंद्र मोदी का कद, अगर इसी तरह की जीत आगे बढ़ती है, तो बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की कतार में अब नरेंद्र मोदी का नाम भी आएगा? नहीं, मैं इस तरह के सवाल के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। इन चुनाव में देखिए ना, पर्सनालिटी की बात जब आप कर रहे हैं, चुनाव की हार जीत और कितने चुनाव कोई नेता जीतता है, उससे नेताओं की कंपैरिजन नहीं की जाती है। मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू के साथ अभी नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल से ये गुजरात की चुनाव है, हम गुजरात की ऊपर बात करें, एंटी इनकम्बेंसी को भी अगर वो अपने दम पर ज्योति बसु है, और लेफ्ट फ्रंट जो है बंगाल में 34 साल राज किए, और उसके बाद सरकार जब गई तो अभी वो पार्टी का कहीं नज़र में नहीं आ रहा है। राजनीति में ये होते रहता है। मेरे ख्याल से चुनाव के नतीजों से नेताओं की कदर की मुकाबला करना एक सही तरीका नहीं होगा। हम उसको अगर साइड में रख लें और ये देखें कि क्या गुजरात चुनाव क्या कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस अच्छी कर रही है अभी। अगर आप देखें ये 52 सीट जो हैं, 52 सीट में से लगभग इसमें 10-11 सीट पर उनको गेन से, यानी कि ये सीट जो है ये बीजेपी के सीट्स थे, और बीजेपी के जो अभी 90 आपके यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो शायद नीचे, मैं दूसरे सोर्स से देख रहा हूँ, थोड़ा कम नीचे आ गए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट खत्म हो गए, अब बाकी दूसरे रिजल्ट्स निकलने लगे हैं, तो कांग्रेस की मोमेंटम पकड़ रही है। आप शुरुआत के जो ट्रेंड्स जैसे दिखा रहे हैं, ये अभी का ट्रेंड अगर ले तो अभी 110 के नीचे ही बीजेपी दिख रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है ये बदलेंगे। अभी इन चीजों के ऊपर इतना जल्दी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। ठीक है राहुल देव, आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह की अभी रुझान हमें दिख रहा है वो लगभग वैसे ही है जो 2012 के चुनाव के वक्त थे, लगभग उसी तरह के रुझान और बढ़त हमें अभी दिखाई दे रही है। कितना क्या सिग्निफिकेंस है इस जीत और हार का बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? पहली बात यह कि एग्जिट पोल्स के औसत को अगर देखें तो कांग्रेस अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और बीजेपी अपेक्षा के अनुसार ही जीत रही है, लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अंततः वो अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान और भविष्यवाणियाँ साबित होंगी, वो कोई वैसा चमत्कार नहीं करने वाली। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर वो 108, 110 और 112 के आसपास भी रहती है तो ये कोई कम महत्वपूर्ण, कम प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं होगा। इसलिए इसको हम एक वास्तविक और एक व्यावहारिक धरातल पर अगर देखेंगे तो ये फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा।
बिल्कुल, और ये लगातार जो रुझान है, जो अपडेट है पल पल का, वो लगातार आपको राज्यसभा टीवी पर मिलता रहेगा। फिलहाल हम यहाँ आप सभी लोगों से इजाज़त लेंगे और एक बार फिर जाते जाते हम जो ट्रेंड है वो आपको बता दें। 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 58 सीटों पर, जबकि अन्य 1 सीट पर आगे है। जो अभी तक के रुझान गुजरात में मिल रहे हैं, वहीं हिमाचल में बीजेपी 18 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 11 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर आगे है। और These of course are early trends. These numbers could change over the course of the next 1 hour or so. So do keep tuned in to Rajya Sabha television and get the latest as to what's happening as far as the counting day in Gujarat and Himachal are concerned. We'll keep bringing you minute by minute updates right here on Rajya Sabha TV with and also analyze these numbers for you as and when they come in with an expert set of panelists here in our studio, and they'll be joined by political analysts as well from around the country. That's it from us now.